Hello guys, my dear students. We will be discussing about oral pathology. We have discussed in the previous lectures various cysts, various tumors. Those were the tough questions which can be asked for 7 marks. But these are the silly questions which will be asked for 5 marks. You do not need to mug up also, just understand the concept and you will be able to write 5 marks question which is of 10 to 12 minutes. These are the questions which will help you get good marks because in this question you have to just stick to the point, explain the concept, explain the treatment plan. We are a Medical Dental Academy. On behalf of Free Dental Guide, we provide you guidance for NEET MDS, all the exams after BDS, any interviews regarding job for dental exams, abroad dental exams, even after MDS, if you are planning for doing NEET MDS or army exam or dental PhD, we will guide you. So we will not waste our time. We will just start. Our first topic for today is abrasion. Okay. Now, first of all, you understand that abrasion, attrition, effraction, erosion all are dependent on the surface. Okay. Abrasion is found only on the labial surface or buccal surface. Okay. Attrition is found on the occlusal surface. Erosion is found on lingual surface. Okay. So in this way, you can remember that surface is important here. With just your name that it is abrasion, it should be coming to your mind that it is on the labial surface. Okay. Now what is this? Abrasion is the pathological wearing, okay, of dental tissues by friction with the foreign substances. Okay. So first of all, you tell that it is on the buccal or labial surface. It is due to here they have given that some friction is there, but mostly it is due to faulty toothbrushing technique. Okay. Sometimes due to toothpick also, patient has the habit of going with abrasion. Okay. So abrasion is on the buccal surface. It is due to friction by some foreign substance. For example, here we tell that it is due to faulty toothbrushing. Now etiology. See the first etiology. It is faulty toothbrush. Then sometimes patient is having habit of smoking. Okay, they might cause abrasion on the buccal surface. Occupational abrasion, hairdressers, carpenters. Then due to some prosthetic appliance also. If you place a denture and have some clasp on the tooth, then that steel clasp will go for abrasion on the labial surface. Okay. Now ritual aberrations. Sometimes patient have a habit of doing some rituals. We don't know the exact rituals, but those are the etiology. So here you need not mug up. You just tell that how it is happening. So faulty toothbrushing due to habit of smoking, due to some denture, due to occupation. You can enumerate these points. Okay. Now clinical features. In abrasion of tooth, the type and severity of surface will depend upon the duration and type of faulty habit adapted by the person. ओके. तो सी क्लिनिकल फीचर्स तो आपको ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है.
आपका बक्कल सरफेस है टूथ का या लेबियल सरफेस, वो घिस जाता है, इट इज बीइंग worn off. So what happens? Your enamel is worn off. After enamel is lost, what will happen? All the protective features of enamel will be gone. तो increased sensitivity, फिर टूथ का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा इसलिए येलो हो जाएगा। पेशेंट को सर्वाइकल रीजन में ज़्यादातर होता है ये, ठीक है। लेबियल सरफेस ऑफ इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स, ये साइट बताई कहाँ होता है, तो सर्वाइकल रीजन में लेबियल सरफेस पर। और कौन से टीथ ज़्यादा अफेक्ट है, तो मैक्सिलरी टीथ, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको टू द पॉइंट ही लिखना है, तो क्या हो सकता है? वी शेप्ड एज बनाएंगे कहाँ पे, टूथ के जो सर्वाइकल रीजन होगा ना, वहाँ पे एक नोच बनाएंगे, खड्डा जैसा हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ा डेंटिन एक्सपोज हो गया है, ठीक है। फिर टूथब्रश एब्रेजन में कोज जिंजाइवल रिसेशन, ठीक है। टूथब्रश से क्या हो सकता है, कभी कभार जिंजाइवा भी रिसेशन हो जाता है, जिंजाइवा की हाइट कम हो जाएगी, दांत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। फिर ऑक्यूपेशनल एब्रेशन क्या करेगा, जैसे कि कोई टेलर है, उसको सुई वो बार बार दांत पे लगाएगा, तो दांत के अंदर एक खड्डा जैसा हो जाएगा, उसको भी हम बोलेंगे एब्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ऑक्यूपेशन भी होते हैं। अब सीवियर एब्रेशन से क्या होता है, डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक्सपोज हो जाएगी, और सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी पेशेंट को, ठीक है। तो ये उसके क्लिनिकल फीचर्स है। अब ट्रीटमेंट, तो रिमूवल ऑफ इटियोलॉजी, तो क्या है इटियोलॉजी? तो जो फॉल्ट है, फॉल्टी टूथब्रश है, उसको बंद कर देना है। फिर जो भी डेंचर खराब है, जो डेंचर से इरोजन हो रहा है, एब्रेशन, उसको आपको ट्रीटमेंट देनी है, उसको आपको अवॉइड करना है। ऐसे एसओएस जो भी ट्रीटमेंट है वो इटियोलॉजी, उसको निकाल देना है। और फिर आपको जो नोच हो गया है, जो टूथ सरफेस चली गई है, उसको आप रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है, रिस्टोरेशन आप कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में अभी तक जो हमने पढ़ा ना, वो कुछ नहीं, वो आपको क्या करना है, हम एक ही वो टॉपिक से सब समझा देते हैं। पहले तो आप यहाँ पे लिखिए एब्रेजन, इरोजन, ठीक है, एट्रिजन। तो यहाँ पे डेफिनेशन, तो टूथ सरफेस वेयर हो जाएगा, टूथ सरफेस घिस जाएगा ऑन द लेबियल or buccal surface due to some friction. Here the same thing, tooth structure is gone by some chemicals or some reasons on the lingual surface. Here it is on the occlusal और incisal surface, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पहले होना चाहिए, आप डेफिनेशन बना भी सकते हो, ठीक है, तीनों की। फिर आता है इटियोलॉजी, तो यहाँ पे टूथ ब्रश जो है फॉल्ट से होगा, ऑक्यूपेशन से होता है, कोई स्मोकिंग से होता है, कोई हैबिट होती है, ऐसा होता है, कभी कभार मतलब अननोन रीजन भी होते हैं, कुछ पता नहीं चलता, कभी कभार ट्रीटमेंट के टाइम भी होता है, डेंचर के कारण भी होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ऐसे ही आपके नोट्स में बना देना है और आपको ये याद रखना है। फिर आता है इरोजन, तो इरोजन कहाँ होता है, इट इज ऑन द लिंगुअल सरफेस, ठीक है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ मतलब एनी एसिड बिवरेजेस, ठीक है। और अगर आप गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो भी रिकरगेट होगा, तो भी वो लिंगुअल सरफेस को घिस देगा। तो लिंगुअल सरफेस जो कम हो जाएगी, वेयर हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम इरोजन, ठीक है। तो वो इरोजन होता है लिंगुअल सरफेस पर, किससे?
गैस्ट्रिक एसिड से होता है, एसिड रिगर्गिटेशन से होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा तो भी वो हो सकता है। फिर कोई एसिड ब्यूरेज जैसा पीते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, उससे भी लिंगुअल सरफेस पर वो एसिड जाएगा तो वहाँ पे इरोजन हो जाएगा। ठीक है। अब एट्रीजन, एट्रीजन क्यों होता है? ब्रक्सिज्म से, या पेशेंट को चूइंग फोर्स ज़्यादा है, कोई हार्ड फूड खाते हैं, तो ऐसे ब्रक्सिज्म का मतलब क्या है? दांत ऐसे ही ऊपर और नीचे के दांत को घिसते रहना। नाइट के टाइम बहुत सारे लोगों को ये हैबिट होती है। ठीक है। तो ब्रक्सिज्म इज द मेन etiologic फैक्टर। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या आएगा उसमें? तो आपको तो पता ही है, यहाँ पे इनेमल चला जाएगा एब्रेजन में, तो इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी, टूथ का डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा इसलिए थोड़ा येलोइश दिखेगा। डिक्रीज्ड ट्रांसल्यूसेंसी ऑफ इनेमल। ठीक है। फिर क्या आएगा? पेशेंट के जिंजाइवा भी रिसेशन हो जाएंगे, कभी कभार दांत दो दांत के बीच स्पेस हो जाएगी तो इंक्रीज्ड एम्ब्रेजर हो जाएगा, फाउल स्मेलिंग भी हो सकती है। ऐसे आपको पॉइंट्स बनाने हैं और ऐसे ही आपको पॉइंट लिखना है एग्जाम में। अब इरोजन में क्या होगा? तो टंग को बार बार जो सरफेस होनी चाहिए स्मूथ, वो स्मूथ नहीं रहेगी। फिर अंदर से आपको सेंसिटिविटी जैसा लगेगा लिंगुअल सरफेस के ऊपर। फिर सेम फूड लॉजमेंट भी होगा अंदर की ओर। ठीक है। तो ऐसे टंग के अल्सर पर भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। और फिर एट्रीजन, एट्रीजन में क्लिनिकल फीचर्स क्या आएगा? टूथ की हाइट कम हो जाएगी, पेशेंट को ऑक्लूजन ठीक नहीं होगा, ऑक्लूजन ठीक नहीं होगा तो ठीक से चू नहीं कर सकता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है। पेशेंट का फेशियल अपीयरेंस कम हो जाएगा क्योंकि वो वीडी कम हो जाता है। ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है इसमें, चीक बाइटिंग भी आ सकता है, अल्सर भी हो सकता है, एंगुलर चिलाइटिस भी हो सकता है। ऐसे करके ये आपको तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। अब आता है उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या आएगा? तो एब्रेजन में आपको क्या करना है? आपको ईटियोलॉजी को निकालना है सब में पहले, फिर रिस्टोरेशन करना है, इनेमल को रिस्टोर करने की कोशिश करना है। आप विनियर्स भी कर सकते हो बहुत ज़्यादातर केस में, वो तो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। अगर ऐसा नहीं करना है तो अगर आपको खाली सर्वाइकल रीजन में है तो आपको फीलिंग कर सकते हो। क्लास 5 जो कैविटी बोलते हैं ना, वो इसके कारण होती है। अब इरोजन, जो इरोजन होता है उसमें आपको क्या करना है? सेम आपको रिस्टोरेशन कर सकते हो, पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हो कि अगर आपका कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस है तो उसकी आप ट्रीटमेंट करवा दीजिए, एसिड बेवरेजेस कम करिए, ऐसे आप उसको बोल सकते हो। और एट्रीजन, इसमें आपको क्या करना है? फुल माउथ रिहेबिलिटेशन आता है, प्रोस्टो में नए दांत लगा देने हैं पेशेंट को, ठीक से वो कर सके इसलिए। पेशेंट को बोलना है कि सॉफ्ट लिक्विड डाइट खाए, कभी कभार हमको सारे दांत में आरसीटी भी करवाना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब उसके ट्रीटमेंट प्लान में आता है। ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट है, एब्रेजन, इरोजन, एट्रीजन। अब लास्ट में जो है ना वो एफ फ्रैक्शन है। वो एफ फ्रैक्शन क्या है? वो एबनॉर्मल फोर्सेस आएंगे ना टूथ के ऊपर, ठीक है, बायोमैकेनिकल फोर्सेस एबनॉर्मल आएंगे ना, तो टूथ बीच में से थोड़ा शेड हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है। तो वो टूथ के बीच में से जो इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं हम एफ्रैक्शन। ठीक है। वो रूट और क्राउन जहाँ मिलते हैं ना सर्वाइकल रीजन में, वहाँ आपको थोड़ा खड्डा जैसा दिख जाएगा। तो एफ्रैक्शन में आपको खाली इटियोलॉजी याद रखना है कि उसमें एबनॉर्मल फोर्सेस है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या आएगी? पेशेंट को ऑक्लूजन में दिक्कत, खाने में दिक्कत, न्यूट्रिशन में दिक्कत, चिक बाइटिंग हो सकता है, अल्सर भी हो सकते हैं। और उसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या आएगा?
तो फोर्सेस को ठीक कीजिए, ऑक्लूजन को ठीक कीजिए, न्यूरोमस्कुलर थेरेपी भी आप कर सकते हो, ऐसे सब ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, तो एब्रेजन, इरोजन और एट्रीजन और एफ्रैक्शन ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, स्क्लेरोटिक डेंटिन। ये तो आपने सेकेंड ईयर में ही पढ़ लिया होगा या फर्स्ट ईयर में। उसको ट्रांसपेरेंट डेंटिन भी बोलते हैं। वो क्यों होता है? तो वो डेंटाइनल ट्यूबुल्स जो होती है ना, वो ऐसे होलो होनी चाहिए, लेकिन वो कैल्सिफाइड हो जाती है। ठीक है, बहुत एज के साथ, ये आज का जो टॉपिक है ना वो यही टॉपिक है, एज के साथ दांत में क्या क्या दिक्कत आती है, या टीथ का और ओरल कैविटी में जो आप चेंजेस आते हैं एजिंग के साथ, वो आपको समझाए हैं। तो पहला आया एब्रेजन, एट्रीजन, इरोजन और एफ्रैक्शन। ठीक है, अब आता है स्क्लेरोटिक डेंटिन। तो डेंटिन में क्या चेंज आएंगे? डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कैल्सिफाइड हो जाएगी एज के साथ। ठीक है, इट्स ए रिग्रेसिव ऑल्टरेशन। अब इटियोलॉजी, तो आप बोल सकते हो कि इंजरी, एजिंग है, एब्रेजन है और स्लो प्रोग्रेसिंग कैरीज है। तो ये थोड़े रीजंस है ना, वो कोई रटने वाली चीज नहीं है। यू कैन थिंक कि विद द एज क्या होता है, कि एब्रेशन भी हो सकता है, इरोजन भी हो सकता है, आप इडियोपैथिक भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है स्क्लेरोटिक डेंटिन में? तो कैल्सिफिकेशन के कारण डेंटिन की परमिएबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और पल्प जो है ना, वो वाइटलिटी उसकी बढ़ जाती है। डेंटिन क्या होता है? डेंटिन ट्यूब्यूल सोलो होते हैं ना, तो फ्लूइड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है और ओडोंटोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं। तो पेन ज़्यादा होता है और इससे पल्प भी खराब हो सकता है, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स होलो है, कैरीज इसमें से ट्रैवल कर सकती है। अगर ये ट्यूब्यूल्स ब्लॉक हो गई, ठीक है, कैल्सिफाइड हो गई, तो पल्प अच्छी तरह से प्रोटेक्शन मिल जाएगा और उसकी वाइटलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब वो हिस्टोपैथ में क्या दिख रहा है? तो ट्रांसल्यूसेंट जोन दिखेगा। ये तो हमने फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा था। जब ट्रांसमिटेड लाइट आएगी ना, तो उसमें ट्रांसल्यूसेंट जोन जैसा दिखेगा स्क्लेरोटिक डेंटिन। ठीक है, अब कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जैसे मैंने बताया ना, ट्यूब्यूल्स ब्लॉक हो जाएगा, तो वो कैरिस भी नहीं जा सकता, सेंसिटिविटी भी नहीं जा सकती। ठीक है, तो पेशेंट को सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगा और कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। फिर पल्प के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं? ठीक है, तो पल्प के अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, वो क्या क्या होता है? नॉर्मल पल्प होता है, उसमें ब्लड वेसल्स ठीक होती है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, सेल्स अच्छे होते हैं। तो जो भी नॉर्मल है ना, वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे, वो उनका अच्छी तरह से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, यही आपको समझाना है। पहले तो सेल चेंजेस, पल्प के अंदर क्या क्या सेल चेंजेस आएंगे? साइज कम हो गई, नंबर कम हो गए, फाइब्रोब्लास्ट क्या हो गया, उसमें थोड़े मॉर्फोलॉजिक चेंज आ गए। तो आपको ये सब सारी चीज़ें समझानी है। ठीक है, फिर फाइब्रोसिस, पहले हमने सेल के बारे में समझाया, फिर फाइबर्स। तो फाइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, जो तरह से काम करना चाहिए वो नहीं हो सकता है। ठीक है, और फाइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फाइबर्स वैसे कम होने चाहिए, सेल्स वैसे ज़्यादा होने चाहिए, तो ऐसे आपको डिफरेंस लिखना है। फिर वास्कुलर चेंजेस, ठीक है, तो वास्कुलर चेंजेस भी आ सकता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक भी आ सकता है पल्प के अंदर। ठीक है, ये सब चेंजेस उसके अंदर आएंगे। तो हमको तीन चेंजेस लिखना है पल्प के अंदर। कौन कौन से? पहला आया सेल, फाइबर और वास्कुलरिटी। तो ये तीन चेंजेस आपको समझा देने हैं रिग्रेसिव चेंजेस में। अब कभी कभार क्या होता है, पल्प के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पल्प स्टोन। ठीक है, दूसरा नाम है डेंटिकल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। वो क्या है? तो वो कैल्सिफाइड मास है पल्प के अंदर।
ठीक है, वो कोरोनल पोर्शन में दिखे जाते हैं। फिर वो पेन नहीं करते हैं, सिम्टम भी कोई बताते नहीं है। कब तक? जब तक वो नर्व को अफेक्ट ना करे। ठीक है। फिर पल्स टोन के दो क्लासिफिकेशन है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ट्रू का मतलब ये है कि वो सही में पल्स टोन जैसे दिख रहे हैं, और फॉल्स का मतलब वो नहीं दिख रहे अच्छी तरह से। ठीक है। फिर आता है 3 टाइप का क्लासिफिकेशन, फ्री, अटैच्ड और एम्बेडेड। ठीक है। अब पल्प स्टोन जो होगा ना, उसके आ, उसकी मोबिलिटी, जो फ्री स्टोन होगा ना वो पल्प के अंदर घूमता रहेगा, अटैच होगा वो कहीं अटैच हो गया होगा, और एम्बेड होगा वो कोई भी सेल के अंदर एम्बेड हो चुका होगा। ठीक है। तो दो टाइप के पल्प स्टोन होते हैं, पहले तो ट्रू और फॉल्स, और तीसरा क्लासिफिकेशन है फ्री, अटैच्ड और एम्बेडेड। ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं। अब पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस तो आपको बता ही देना है कि क्या होता है। जो रूट शीथ होती है ना, जिसमें से रूट बनता है, जिसमें से डेंटिन बनता है, ठीक है, रूट शीथ, वो पल्प के अंदर कभी कभार उसके सेल्स आ जाते हैं, उसके रेमनेंट्स आ जाते हैं। फिर वो ओडोंटोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। वो सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, इंड्यूस करते हैं कि आप ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाइए और डेंटिन के मास बनाइए। तो इसको बोलते हैं ट्रू पल्प स्टोन। अब ट्रू पल्प स्टोन किसको बोलते हैं? रूट शीथ के जो रेमनेंट्स है, वो पल्प के अंदर पल्प को इंड्यूस करेगा कि आप सेल्स बनाइए। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन बनाएगा और उससे ट्रू पल्प स्टोन आ जाएगा। ठीक है। अब फॉल्स पल्प स्टोन क्या है, ये आपको समझा है। कभी कभार ट्रॉमा होता है, ब्लड आता है, वो क्लॉट फॉर्म हो जाता है और पल्प स्टोन बन जाता है। कभी कभार फाइब्रोसिस भी हो जाता है, तो फॉल्स पल्प स्टोन। ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स में क्या दिक्कत है, डिफरेंस है? ट्रू पल्प स्टोन वो है जो रेमनेंट ऑफ हार्टविक्स एपिथेलियल रूट शीथ है, वो पल्प के अंदर रह जाएंगे। वो पल्प को इंड्यूस करेंगे कि आप ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाइए। वो ओडोंटोब्लास्ट क्या करेगा? पल्प का स्टोन बनाएगा और पल्प स्टोन बन जाएगा, वो बोलते हैं ट्रू पल्प स्टोन। कैल्सिफाइड मास जो होगा वो। फॉल्स पल्प स्टोन क्या होगा? वो कोई ट्रॉमा होगा या फिर कोई फाइबर्स बन जाएंगे, वो जो बनता है वो बनता है फॉल्स पल्प स्टोन। ठीक है। और उसका दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? ट्रू, एम्बेडेड और अटैच्ड। ठीक है, ये दूसरा भी क्लासिफिकेशन है। तो ऐसे आपको सब लिख देना है। अब डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन, तो आपको यही बताना है कि पल्प के अंदर कभी कभार कैल्सिफाइड मास बन जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो रूट कैनाल जो होगी वो कैल्सिफाइड होगी, इसमें आरसीटी करने में दिक्कत होगी। हमको अल्ट्रासोनिक जो स्केलर आता है एंडो एक्टिवेटर, उससे वो निकालना है और फिर एपेक्स तक उसका एक्सेस लेना है। ठीक है। अब आया पिंक टूथ का क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में। पिंक टूथ का दूसरा नाम है इंटरनल रिजॉर्प्शन। ठीक है, दांत अंदर से थोड़ा रिजॉर्ब हो जाएगा, पल्प थोड़ा दिखेगा, तो बाहर से टूथ पिंक कलर वाला दिखेगा। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है। अदर नेम्स क्या है? हाइपरप्लेजिया ऑफ पल्प, इंटरनल ग्रेनुलोमा, ओडोंटोग्लास्टोमा और पिंक टूथ, और ममरी, पिंक टूथ ऑफ ममरी और इंटरनल रिजॉर्प्शन ऑफ टूथ। ठीक है। वो पल्पल सरफेस से रिजॉर्प्शन चालू होता है। ठीक है, टूथ के बाहर से नहीं, इनेमल और डेंटिन से नहीं, पल्पल सरफेस जो होती है ना, वहां से चालू होता है। अब वो क्यों होता है, तो आपको ये पढ़ाने की कोई चीज नहीं है। पहले टूथ को इंजरी होगी, उससे ट्रॉमा होगा। ठीक है, पल्प के अंदर हेमरेज हो जाएगा, फिर क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाएगी, उससे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनेंगे। ग्रेनुलेशन टिश्यू में आपको हमने बताया था, एक तो फाइबर्स बनते हैं, फाइब्रोजेनेसिस वाले सेल्स, और ब्लड वेसल्स ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे फाइबर्स की जगह ओडोंटोब्लास्ट भी बनेंगे। ठीक है, डेंटिन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। फिर डेंटिन का
जो क्लास्ट होता है डेंटिन का रिजॉर्प्शन वो बन जाएंगे सेल, वो डेंटिन को रिजॉर्ब करेंगे। डेंटिन रिजॉर्ब होगा तो क्या होगा, जो इनेमल होगा उसके नीचे सीधा पल्प दिखेगा, तो आपको पिंक कलर वाला स्पेस दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पिंक टूथ। अब क्लिनिकल फीचर्स उसके क्या है, तो चलो डेंटिन चला गया, तो अब क्या क्या दिक्कत होगी, तो पेशेंट को ज़्यादा पेन हो सकता है, पेशेंट को सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो सकती है, टूथ का कलर खराब हो जाएगा। ठीक है, वो सब आपको बताना है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या आएगी, आपको पल्प कंप्लीट निकाल देना है और आरसीटी कर देना है, और अगर ये हो नहीं सकता है तो एक्सट्रैक्शन। यही आपका डेंटल में ज़्यादातर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब हाइपर सीमेंटोसिस, हाइपर सीमेंटोसिस क्या है, तो नाम से ही देखिए सीमेंटम ज़्यादा ग्रो हो जाता है, सीमेंटोब्लास्ट ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सीमेंटम हाइपरप्लेजिया। सीमेंटम की थिकनेस बढ़ जाएगी रूट सरफेस के ऊपर, एक्सेसिव सीमेंटम बनेगा ना इसलिए, और उसको बोलते हैं हाइपर सीमेंटोसिस। इटियोलॉजी, तो पेरिएपिकल इन्फ्लेमेशन, मैकेनिकल स्टिमुलेशन, इन्फेक्शन भी लिख सकते हो, इडियोपैथिक भी लिख सकते हो, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी लिख सकते हो। तो यहाँ तो भले लिखे ये फंक्शनल पेजेट टूथ रिपेयर, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको पॉइंट्स आने चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी एग्जाम हो, शॉर्ट नोट या फुल क्वेश्चन, उसमें आपको लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्लिनिकल फीचर, सीमेंटम ज़्यादा बन गया तो क्या होगा, रूट के ऊपर सीमेंटम ज़्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी कभी कभार कम हो जाएगी। ठीक है, और जो सीमेंटम बढ़ेगा ना वो पीडीएल की स्पेस को ऑब्लिटरेट कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पेशेंट को अगर, वो हम कल कर रहे थे ना टेंडर ऑन परकशन, टेंडर ऑन परकशन का मीनिंग प्रोब से आपको दांत को मारना है, तो क्या होगा, टूथ पेन होगा पेशेंट को, वो बोलते हैं टेंडर ऑन परकशन। फिर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, तो आपको स्लाइड ड्रॉ करके सीमेंटम बहुत ही सारा बता देना है, सेलुलर सीमेंटम ज़्यादा बताना है। ठीक है, ओवर ए सेलुलर सीमेंटम, फिर ज़्यादा रूट को थोड़ा कम बताना है, सीमेंटम का कॉन्सेंट्रेटिंग लेयर बताना है, तो ऐसे करके सीमेंटम वो सीमेंटोब्लास्ट बताने हैं। और रेस्टिंग लाइन भी बतानी है। ये रेस्टिंग लाइन क्या होता है, ये लाइंस ऐसी होती है कि जहाँ डिपोजिशन ज़्यादा होता है और रिजॉर्प्शन कम होता है, तो उसके बीच में थोड़ी लाइंस बन जाती है। ठीक है, तो वो हम बोलते हैं रेस्टिंग लाइंस। अब रेडियोग्राफ में क्या दिखेगा, तो पीडीएल की जगह होगी ना, वहाँ पे एक्सेसिव सीमेंटम दिखेगा, और आपको लगेगा कि रूट्स थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए, एनलार्ज हो गए। और इसकी ट्रीटमेंट, तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, इसको आपको वेट एंड वॉच ही करना है। जब आप दांत निकालते हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये दांत निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब एट्रीजन का पॉइंट तो हमने आपको समझा दिया है, इट इज ऑन द ऑक्लूजल सरफेस और इंसाइजल सरफेस। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये तीनों चारों के चार एक साथ पूछे जा सकते हैं। तो एफ्रैक्शन क्या है, टूथ सरफेस चली जाएगी दांत के बीच में से सर्वाइकल एरिया में, क्यों होता है, तो दोनों फोर्सेस एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अब सीमेंटम के डिसीज आपको एनिमरेट करना है, और सीमेंटम के रिग्रेसिव ऑल्टरेशंस, एज के साथ सीमेंटम में क्या क्या चेंजेस आते हैं।
तो ये सीमेंटम का जो क्लासिफिकेशन है सीमेंटल डिसीज वाले, वो आपको सब लिखते रहे, सीमेंटम बढ़ेगा कम होगा ऐसे, ठीक है। फिर वो सब आपको समझा देने हैं। अगर क्या होता है कभी कभार एग्जाम में सीमेंटम के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर एक एक आपको आता है और दूसरा भूल गए हो, तो आप एक दूसरे का नॉलेज भी इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो क्या होता है, थ्योरी एग्जाम में जो मेन पॉइंट्स होता है वही एग्जामिनर देखने वाले हैं, ठीक है। डिफाइन एट्रीजन, एब्रेजन और इरोजन, एफ्रैक्शन, इरोजन, पल्प स्टोन, फिर से रिवीजन थोड़ा करवा देते हैं। ये कैल्सिफाइड मास है पल्प के अंदर, दो टाइप के होते हैं। ट्रू, जो रूट शीथ वाले रेमनेंट्स पल्प में रह जाएंगे, उससे जो पल्प स्टोन बनते हैं वो ट्रू है। फॉल्स मतलब जो वास्कुलर कुछ है एमरेज होगा, कुछ इंजरी होगी, उससे जो क्लॉट फॉर्म हो जाता है और वो वहाँ पे मिनरलाइजेशन होता है, वो होते हैं फॉल्स स्टोन, फॉल्स स्टोन्स। और तीन प्रकार के आते हैं, वो फ्री आते हैं जो घूमते रहते हैं, अटैच्ड आते हैं वो कहीं अटैच हो गए, और एम्बेडेड आते हैं वो कहीं सेल्स के अंदर एम्बेडेड होंगे। तो आपको ऐसे शॉर्ट नोट कंप्लीटली आना चाहिए, ठीक है। फिर पल्प कैल्सिफिकेशन, उसमें भी आपको लिखना है कि पल्प के अंदर पल्प स्टोन भी हो सकते हैं और डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। तो पल्प स्टोन आप समझा दोगे, और कैल्सिफिकेशन ये समझाना है कि पल्प के अंदर कभी कभार कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कैल्सिफाई कैनाल्स हो जाती है, रूट कैनाल में दिक्कत होगी, वो सब आपको समझाना है। पल्प स्टोन भी होता है तो भी हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के टाइम रूट कैनाल का एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो 5 मार्क्स शॉर्ट नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको आराम से जो भी हमने पढ़ाया वो आपको नोट्स बनानी है। तो गाइज, हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए बहुत सारे, ये थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया तो आप बेल बटन दबा दीजिए, ताकि नए नए आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारी वेबसाइट की लिंक है medicaldentalacademy.com, इस पर आपको सारी स्टफ मिल जाएगी, डेंटल स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इंटरव्यूज हो, हम सारे सब्जेक्ट के वीडियोस भी वहाँ पे रखने वाले हैं। आपको अगर फर्स्ट टू फाइनल ईयर BDS पास होने में दिक्कत हो रहा है, नीट MDS में कैसे आपको तैयारी करें वो भी कोई क्वेश्चन है, या आपको MDS के बाद कंसल्टेशन में कैसे ग्रोथ करें, तो आप हमारी ये एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। हमको अप्रोच कीजिए, हम आपको पूरी के पूरे तरह से सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आपको फेल नहीं होने देंगे एग्ज़ाम में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।